Okay, so today we'll start with wave optics. तो वेव के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना हुआ है. Wave is what? It is a mode of transfer of energy. Through wave we can transfer energy from one place to other place. Suppose there are two persons. So if they are talking to each other, so energy is transferred in the form of sound wave from first person to second person and second person to first. Yeah, if you are talking to someone, so energy is transfer. अगर हम फोन से भी बात करते हैं तो we are transferring energy through electromagnetic waves because if ये दो लोग अगर मोबाइल से बात कर रहे हैं तो दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ या थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो वेव इज बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. when we have to transfer energy from one place to other place, so through wave we can transfer. कुछ भी हम ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारा, जैसे हम बात करते हैं या हम मैसेज लिखते हैं या फिर कोई वीडियो पिक्चर कुछ भी भेजते हैं तो थ्रू वेव्स वी कैन ट्रांसफर, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी कैन transfer. So in this chapter we are going to study about the properties of wave. In waves की properties क्या होती हैं, what will happen if two waves are superimposed at a point. तो अगर सपोज करो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. Superposition of two waves. There are some basic terms like about wave. If a one cycle is completed, because already आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साउंड वेव, तो उसमें आपको मालूम होगा. यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव. सो बेसिक प्रॉपर्टीज वेव्स की क्या होती हैं कि व्हेन वन साइकिल ऑफ अ वेव इज कवर्ड completed, the distance covered by that wave is called wavelength of the wave. The time taken by that wave to complete one complete loop, to complete one cycle, that is the time period. And the speed of the wave is what? V. So the distance covered to complete one cycle is wavelength. The time taken by that wave to complete one cycle is time period. And speed, so speed, how you can find speed is what? Distance upon time, that is lambda by t. And 1 upon t is the frequency. Frequency of wave is what? 1 upon time period. Frequency is reciprocal of time period. So यहाँ पे हम in place of 1 upon t what you can put? N, frequency. So that is the relation between speed, frequency and wavelength. So speed is equal to frequency into wavelength. These are the basic terms. In this chapter we are going to discuss about the superposition of wave. If one wave is superimposed with other wave, अगर दो वेव साथ में इंटरफियर करते हैं, दो वेव साथ में मिलते हैं, सपोज करिए एक वेव यहाँ से आ रहे हैं, another wave is, both the waves are interfering at this point. यहाँ पे मैंने एक वेव बनाया, this is the first wave, there is another wave, both are interfering at that point. So in a wave, this part is what? That positive loop is crushed and the negative loop is struck. So जहाँ पे देखो इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों ही वेव्स के पॉजिटिव लूप्स इंटरफियर कर रहे हैं. So at this point, दोनों की पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, this is what negative amplitude. So at the point of interference, the point where both the waves are interfering with each other, at the point of interference both the waves are in the same phase. यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों के पॉजिटिव लूप वहाँ पे हिट कर रहे हैं. So it means at that point, at the point of interference both the waves are in the same phase. So if both the waves are in the same phase, तो जो एक resultant wave बनेगी, whenever two waves are added, a resultant wave is formed. So because the waves which are added, both the waves are in the same phase at this point, so the resultant wave का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बिकॉज इन दोनों वेव्स ने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया उस पॉइंट पे एंड अ न्यू वेव इज फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकंड वेव, और जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है अ न्यू वेव इज फॉर्म विद हायर एम्पलीट्यूड बिकॉज जो इंटरफेरेंस हो रहा है दैट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज परफॉर्म बाय द वेव व्हेन बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेज. अब सोचो क्या होता अगर एक किसी पॉइंट पे, दिस इज द फर्स्ट वेव जिसका पॉजिटिव लूप यहाँ पे पहुंच रहा है और सेकेंड वेव का नेगेटिव साइड नेगेटिव लूप पहुंच रहा है. सो फॉर एट दिस पॉइंट फॉर द फर्स्ट वेव का क्रस्ट यहाँ पे आ रहा है और सेकेंड वेव का ट्रफ आ रहा है, मतलब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, दोनों अपोजिट फेज में है. सो इफ टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगा उसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम होगी, they are going to cancel each other. अब अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हैं तो एकदम से कैंसिल कर देंगे तो यू विल गेट अ जीरो, मतलब अ वेव ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, मतलब कोई वेव ही नहीं रह जाएगी. और सपोज सम टाइम व्हाट हैपेंस कि दैट पॉजिटिव पल्स इज ऑफ एम्पलीट्यूड 10 एंड नेगेटिव पल्स इज ऑफ एम्पलीट्यूड 8. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि प्लस 10 और 8 दोनों तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे तो +2 का एम्पलीट्यूड बच जाएगा.
सो यहाँ पे अगर सपोज करो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है तो you'll get a resultant wave, but this interference is what destructive interference because both the waves are in opposite phase and they are going to destroy each other at the point of interference. So whenever two waves are added, ये केवल waves में होता है interference, सॉलिड लिक्विड और गैस में नहीं होता। अगर तुम दो सॉलिड ब्लॉक्स को ऐड करो, मान लो मैंने एक 1 किलोग्राम का पत्थर में 2 किलोग्राम ऐड कर दिया तो वो 3 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर वाटर 2 लीटर वाटर ऐड करोगे 3 लीटर बन जाएगा। 1 किलोग्राम ऑफ गैस 2 किलोग्राम ऑफ गैस ऐड करोगे तो वो भी 3 होता है। सो सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या होता है कि इफ आर एडिंग 2 सॉलिड 2 लिक्विड और 2 गैसेस, रिजल्टेंट मास विल इंक्रीज। वहां पे ऐसा नहीं होता कि डिक्रीज कर दिया दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता कि 1 किलो 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड विद 2 लीटर ऑफ मिल्क और वाटर ने मिल्क को खत्म कर दिया, ऐसा होगा ही नहीं। रिजल्टेंट वॉल्यूम 3 लीटर ही होगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बट वेव्स में क्या होता है कि इफ वेव्स में फेज की कहानी आती है, सॉलिड लिक्विड गैस में फेज जैसा कुछ नहीं होता, बट वेव्स में फेज मैटर करता है। So when two waves are superimposed with each other and both the waves are in the same phase, resultant interference is what? Constructive interference. And if both the waves are in opposite phase, then resultant amplitude is what? That resultant wave is destructive, result of destructive interference. तो अगर सेम फेज की वेव्स सुपरइम्पोज करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अपोजिट वेव्स के अपोजिट फेज के वेव्स अगर इंटरफेयर करेंगे then that interference is destructive. So here it is constructive and this is what? Destructive. When they are going to destroy each other because both the waves are in opposite phase. तो सेम फेज में अगर जैसे दो दोस्त हैं, मान लो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसका एक दोस्त है, दूसरा पढ़ने वाला स्टूडेंट, तो अगर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की दोस्ती दूसरे पढ़ने वाले स्टूडेंट से हो जाती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, वो हमेशा पढ़ाई की बातें करेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, वो एक दूसरे को सपोर्ट ही करें। तो उस केस में क्या है कि दोनों ही पढ़ने वाले हैं, तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर, तो उनका नॉलेज बढ़ेगा ही। तो दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, उनका जो फ्रेंडशिप है दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है और दूसरा पढ़ने वाला नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव वाला है पढ़ने वाला स्टूडेंट है, दूसरा नेगेटिव थॉट वाला है, मतलब उसको पढ़ने लिखने से कुछ मतलब है नहीं, तो वो क्या करेगा? पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब करेगा। सो अगर सेम फेज में होते हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, तो रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। एक पढ़ने वाला है एक नहीं पढ़ने वाला है, तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर, मतलब वो डिस्टर्ब ही करता रहेगा, पढ़ने वाले को भी बर्बाद कर देगा, तो दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। एट द सेम पॉइंट अगर दोनों के नेगेटिव पल्स हिट करते हैं, इसका भी नेगेटिव और सेकंड वेव का भी नेगेटिव ही वहां पे इंटरसेक्ट किया, so again both the waves are in the same phase at the point of interference. Here also both the waves are of same phase, हैं वो नेगेटिव दोनों, लेकिन हैं तो सेम फेज में, तो अगेन दिस इंटरफेरेंस इज और कंस्ट्रक्टिव। वो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके एक बड़ा नेगेटिव नंबर देगा, तो यहाँ पे अगेन इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। So this is what the interference of wave. If two waves which are of same phase, resultant interference is constructive. If both the waves are of opposite phase, resultant interference is destructive. Here also both the waves are of same phase, so again interference is constructive. So how to decide कि whether waves are in same phase or in opposite phase? तो on the basis of phase difference, phase को देख के हम पता कर सकते हैं कि whether waves are in the same phase or waves are in opposite phase. Suppose there are two waves. मैं यहाँ पे दो waves को शो कर रहा हूँ, A and B. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो if angle between these two waves is 0 degree, it means they are in the same direction, they are in the same phase. Second case, अगर A को मैंने टर्न कर दिया 180 डिग्री से, this A is turned by 180 degree. तो when one wave is turned by 180 degree, it means now both the waves are in opposite phase. जैसे देखो ये दोनों मार्कर है, मैंने एक ब्लू मार्कर एक रेड मार्कर है, so when both are in the same direction, so angle between these two markers is what? 0 degree. 0 degree indicates what? They are in the same phase. If one marker is turned by 180 degree, now they are in opposite of each other, yeah, they are in opposite direction, so they are in opposite phase. तो अगर दो waves में 180 डिग्री का एंगल आ जाता है, अभी देखो पहले केस में क्या था, इन दोनों मार्कर में एंगल कितना? 0 डिग्री. If the angle between two waves is 0 degree, it means they are in the same phase. If angle between two waves is 180 degree, so 180 degree indicates that they are in opposite phase. So in this case, if angle between two waves is 180 degree, they are in opposite phase. If it is turned by 360, ये जो blue वाला मार्कर है पूरा 360 से टर्न हो गया, तो again they are in the same phase. तो अगर 0 पे है same phase, pi. If it is turned by pi, the angle between two waves is 180 degree, it means they are in opposite phase. If it is turned by 360, that is 2 pi. तो if angle या phase difference between two waves is 360 degree, 360 phase difference का मतलब वो फिर से same phase में आ गए। If it is turned by 3 pi, again they are in opposite phase.
for 4 pi, if it is turned by 4 pi, again they are in the same phase. If it is turned by 5 pi, again both are in opposite phase. If it is turned by 6 pi, again they are in the same phase. If it is turned by 7 pi, opposite phase. For 8 pi, again they are in the same phase. So this is what the angle. If angle between two waves is 0 degree, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, even multiple of pi. If phase between two waves is what? Even multiple of pi, both the waves are in the same phase. And if phase difference between two waves is what? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. If phase difference is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, then waves are in opposite phase. तो यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, और यहां पे अगर इंटरफेरेंस होता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज का डिफरेंस होता है, दैट फेज डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई या थीटा हम यूज कर सकते हैं। फेज इज नथिंग बट एंगल। तो यहां पे फेज डिफरेंस क्या है हमारा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, which is even multiple of pi. Even multiple of pi. And if phase difference between two waves is what? Here delta phi. I'm not representing it by theta. Phase is nothing but angle, so you can represent it by theta also. But हम normally theta का angle के लिए use करते हैं, यहाँ पे wave में हम phase के लिए phi use करते हैं. So here delta phi is what? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. That is odd multiple of pi. Odd multiple of pi. So if phase difference between two waves is even multiple of pi, it means both the waves are in the same phase. And if phase difference is odd multiple of pi, that means both the waves are in opposite phase. So when two waves are in the same phase and both the waves are superimposed, that interference is called constructive, because वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे. And if phase difference between two waves is what? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, odd multiple of pi, then they are going to destroy its amplitude. So that interference is called destructive interference. So for destructive interference, phase difference is odd multiple of pi. For constructive interference, phase difference is even multiple of pi. फिर से देख लो, ये दोनों मार्कर हैं सेम डायरेक्शन में, कंस्ट्रक्टिव। 180 डिग्री बन गया डिस्ट्रक्टिव। 360 से अगर टर्न लेता है तो 360 का टर्निंग मतलब फिर से सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फॉर 360 या फॉर 2 पाई अगेन इट इज इन सेम फेज। फॉर 3 पाई अपोजिट फेज। 4 पाई से टर्न कर दिया अगेन सेम फेज। 5 पाई अपोजिट फेज। So whenever phase difference is 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, even multiple of pi, both the waves are in the same phase. If phase difference is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, both the waves are in opposite phase. सेम फेज में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज में होंगे तो डिस्ट्रॉय करेंगे दूसरे को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वेव्स में ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम दो सोर्स से लाइट, मान लो दो लाइट बल्ब हैं और दोनों लाइट बल्ब जल रहे हैं, एक स्क्रीन पे हिट कर रहे हैं। द लाइट इज फ्रॉम बोथ द बल्ब्स। ठीक, सपोज यहाँ पे दो बल्ब हैं, यहाँ लाइट का सोर्स है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। हियर इज अ स्क्रीन। तो यहां से दोनों, इस सोर्स से लाइट रेज जा रही है, इस सोर्स से भी लाइट रेज जा रही है और स्क्रीन पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हमको क्या लगेगा कि अगर हम दो लाइट सोर्स से लाइट जलाते हैं तो स्क्रीन पे जहां पे इंटरफेरेंस होगा, जहां पे दोनों लाइट रेज टकराएंगे, वहां पे हमेशा ज्यादा ब्राइट आना चाहिए, ज्यादा ब्राइटनेस हो जाना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, बिकॉज वेव्स हैं ये, सॉलिड लिक्विड और गैस नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है कि जब दो ऐड करोगे तो रिजल्टेंट बढ़ ही जाएगा। वेव्स में क्या होता है, वो एक दूसरे को खत्म भी कर सकते हैं। तो सपोज करो यहां से मैंने दोनों लाइट सोर्स से लाइट जलाया, एकदम सेंट्रल पॉइंट पे लाइट जाके हिट की, तो जब इस सेंट्रल पॉइंट पे लाइट हिट करेंगी तो ब्राइट आएगा। ऐसे भी पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आता है वो 0 का आता है। आप सपोज करो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से मैं किसी इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसके फेस पे तो सारी लाइट आएंगी, तो उसका फेस और ज्यादा ग्लो करने लगेगा, ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई देगा। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और दोनों रेज जब यहाँ से यहाँ पे पहुंचती है तो इस रे को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है और इस रे को डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। सेंटर पॉइंट के लिए क्या था, whatever is the distance covered by the light from the first source, even second source से भी लाइट उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं था तो फेज डिफरेंस 0 था। When phase difference is 0, both the waves are performing constructive interference। तो जो सेंट्रल पॉइंट पे आदमी रहेगा उसके चेहरे पे जो लाइट पड़ेगी वो एकदम ब्राइट हो जाएगा, मतलब इन दोनों से भी ज्यादा, ये दोनों मिल के यहाँ पे एकदम ज्यादा ब्राइटनेस शो करेंगे। यहाँ पे कोई बंदा है, अब इस बंदे के लिए क्या हो रहा है, जो लाइट फर्स्ट सोर्स से आ रही है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और सेकंड सोर्स से जो लाइट आ रही है उसका डिस्टेंस कम है, तो इनमें एक डिफरेंस आने लगा। अब सपोज करो अगर वो डिफरेंस पाई का हो जाए तो यहाँ पे डार्क फॉर्म होगा,
मतलब ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि दो लाइट सोर्स से लाइट आई और जहां पे वो इंटरसेक्ट की वहां पे लाइट दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो ऐसा केवल वेव्स में पॉसिबल है, सॉलिड लिक्विड गैस में ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 1 लीटर पानी में 2 लीटर वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर 2 लीटर वाटर अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस ऐड करने पे बढ़ ही जाता है उनका वॉल्यूम। लेकिन वेव्स में क्या होता है कि वेव्स में फेज मैटर करता है, सॉलिड लिक्विड गैस में कोई फेज यूज नहीं होता, वेव्स में फेज मैटर करता है। इफ वेव्स आर इन अपोजिट फेज, अब सोचो दो लाइट सोर्स से लाइट आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे लाइट दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डार्क स्पॉट है। तो डार्क स्पॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इट मींस एट दिस पॉइंट बोथ द वेव्स आर इन अपोजिट फेज। जब ये वेव्स अपोजिट फेज में आ जाएंगी तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सो ये हमारा डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे। इफ टू वेव्स आर सुपर इम्पोज तो उनमें कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है उनका फेज पे। अगर वेव सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज में होंगे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो दो लाइट सोर्स से हम लाइट जलाते हैं, स्क्रीन पे लाइट हिट करती है तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है और ऐसे भी पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे डार्क स्पॉट होता है। डार्क स्पॉट उस स्क्रीन पे सोचो डार्क स्पॉट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज बोथ द वेव्स आर कैंसिलिंग ईच अदर। जो दो अब उन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया दोनों वेव्स ने? बिकॉज बोथ द वेव्स आर इन अपोजिट फेज। तो वेव्स में एक फेज नई प्रॉपर्टी होती है जो सारी कहानी बदल देती है। सॉलिड लिक्विड गैस में ऐसा फेज कुछ नहीं होता, वेव्स में हो जाता है। वेव्स हमेशा ऐड हो जाती हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद डिपेंड करता है वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो मान लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में फिजिक्स के सर खड़े हैं, मैथ्स के भी सर खड़े हैं, तो ठीक है हम दोनों सॉलिड है ना, फिजिक्स वाले सर भी सॉलिड हैं, मैथ्स वाले सर सॉलिड, तो ये दोनों इंटरफेयर नहीं कर जाएंगे। लेकिन फिजिक्स वाले सर अपना फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया और मैथ्स वाले सर मैथ पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे लोग हैं उनको क्या समझेगा? उनको कुछ नहीं समझेगा। जानते हो क्यों? बिकॉज जो ये साउंड निकल रहा है, जो फिजिक्स वाले सर के मुंह से साउंड वेव आ रही है और जो मैथ्स वाले सर के मुंह से साउंड वेव आ रही है, दीज आर वेव्स। ये दोनों आदमी वेव्स नहीं है, तो इसलिए ये दोनों तो मिलकर एक नया आदमी नहीं बन गए। लेकिन जो उनके मुंह से वेव्स निकल रहे हैं, दोस वेव्स में फेज मैटर करता है। तो जब ये मैथ्स वाले सर मैथ पढ़ाते रहेंगे, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे, तो वो वेव्स मिक्स होकर एक नई वेव बन जाएंगी, जो ना ही फिजिक्स रह जाएगा ना ही मैथ्स रह जाएगा। और वो स्टूडेंट्स को कुछ समझेगा नहीं, वो बनेगा एक नया वेव, लेकिन वो इनको समझेगा नहीं। तो देखो इनके मुंह से जो वेव, जो साउंड वेव जनरेट कर रहे थे, वो वेव सुपर इम्पोज हो गई। दोनों टीचर, यहाँ पे 3-4 और टीचर हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 टीचर खड़े रह सकते हैं, लेकिन क्या 10 लोग साथ में पढ़ा सकते हैं क्या? खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सब सॉलिड है ना, तो वो नहीं मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास में फिजिक्स वाले मैथ्स वाले सर मिलकर नए सर बन गए, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग इंटरफेयर नहीं कर जाएंगे, लेकिन जो हमारी वेव्स होंगी, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये फिजिक्स और मैथ्स का जो साउंड है ये ऐड होकर एक नई वेव बना देगा और वो वेव इनके लिए समझ के बाहर होगा, बिकॉज इनको अकेले मैथ्स समझ में आता है, अकेले फिजिक्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट एक कान से फिजिक्स समझ रहा है, एक कान से मैथ्स समझ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फिजिक्स पहुंचेगा नहीं उस तक, फिजिक्स और मैथ रास्ते में सुपर इम्पोज होकर एक नई वेव बन जाएगी जो उसको समझ में नहीं आएगा। सो वेव्स आर ऑलवेज सुपर इम्पोज विद ईच अदर एंड whether they are going to perform constructive interference or destructive interference, it depends on the phase difference। तो वेव में एक नया प्रॉपर्टी होती है फेज, यही पूरी स्टोरी बदल देता है। इसीलिए हम वेव्स को एकदम अलग से स्टडी करते हैं। वेव्स को हम वैसे नहीं स्टडी करते हैं कि 1 लीटर गैस 2 लीटर गैस ऐड कर दिया 3 लीटर हो गया, ऐसा गैस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में, लेकिन वेव्स में नहीं होगा, बिकॉज वेव्स में आपको फेज को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वेदर वेव्स आर इन द सेम फेज या वेव्स आर इन अपोजिट फेज। Clear? So on the basis of phase difference, you have to decide whether waves are going to perform constructive or destructive interference. अब देखो, path difference and phase difference. If a wave is going to complete one cycle from here to here, so the distance covered by this wave is what? Lambda. That is the distance covered by this wave to complete one cycle. When one cycle of this wave is completed, a loop is complete, a cycle is completed. ये हमारा पॉजिटिव साइकिल था, पॉजिटिव लूप था या नेगेटिव लूप, पूरा एक साइकिल बन गया। So the distance covered by wave is what? Lambda. अब सोचो, अगर ये मार्कर है, सपोज यहाँ से मैं मार्कर को टर्न करता हूँ, ये जब पॉजिटिव हाफ टर्न होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट पॉजिटिव हाफ, उसके नीचे नेगेटिव हाफ होगा। तो इफ दिस मार्कर इज टर्न बाय 180 डिग्री, तो पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो गया। अनदर 180 में नेगेटिव हाफ भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब फॉर पॉजिटिव हाफ एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। देख लो, पॉजिटिव हाफ कवर करने के लिए वो मार्कर को कितना टर्न लेना पड़ता है? 180 डिग्री। फॉर नेगेटिव हाफ आल्सो इट हैज टू टर्न 180 डिग्री। तो पॉजिटिव हाफ भी 180 डिग्री बनाता है, नेगेटिव हाफ भी 180 डिग्री बनाता है। तो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज पाई एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2 पाई। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज।
जो लैम्डा है ये पाथ है और 2 पाई क्या है हमारा फेज। सो 2 पाई एंगल के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होता है दैट इज वेवलेंथ लैम्डा। So from here to here, the path covered is what? Lambda, and angle covered is 2 pi. So that's how we can relate length and angle, because angle को हमको relate करना होगा length से. Then only you will be able to decide whether waves are performing constructive or destructive. तो ये याद रखना, जो 360 डिग्री का एंगल होता है या जो lambda length होता है, it is corresponding to 2 pi. If one cycle of a wave is completed, so what angle it is going to cover? 360 degree. If suppose 2 lambda, 2 cycles are completed, कोई waves ऐसे है, यहाँ पे एक दूसरा मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. So from here to here it is lambda, from here to here it is lambda, from here to here also it is lambda. That's the length covered by that wave in each cycle. Angle, what is the angle covered from here to here? तो ये angle ऐसे जाएगा, ये 0 है, ये pi, here it is 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi and 6 pi. तो देखो जब 3 लैम्डा का था लेंथ, so 3 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितना है 6 pi. So that's how we can relate path and phase. Phase is what? Angle, and path is what? The total length. So angle हमारा in terms of pi हम एक्सप्रेस करते हैं और लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं in terms of lambda. तो पूरा 1 साइकिल है, सपोज करो यहां से यहां तक वेव गई, फॉर 1 साइकिल इट इज नोन, बट जरूर नहीं कि हमेशा 1 साइकिल ही दिया है, उसने कुछ रैंडम वैल्यू दे दी, यहां से यहां तक ही पूछ रहा है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एक्स और जो फेज है दैट इज डेल्टा फाई. ठीक है, सब स्टूडेंट लोग रट्टा मान लेते हैं कि ठीक है 1 साइकिल लैम्डा है तो 2 पाई होगा. ठीक है, अगर वो लैम्डा नहीं दे रहा है, 5 लैम्डा बाय 4, 9 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, कुछ भी रैंडम एंगल दे रहा है, रैंडम पाथ लेंथ दे रहा है, then how to find? If path length is given, then how to find the phase, or if phase is given, then how to find the path? So relation क्या होता है, डेल्टा x को लैम्डा से डिवाइड करो is equal to डेल्टा phi by, अब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है 2 pi. This is what the relation between path difference and phase difference. This delta x is path difference and delta phi is what? Phase difference. अब ये हम केवल वेव्स में रिलेट कर पाते हैं. आदमी कोई रोड पे चल रहा है, वो 10 मीटर चलेगा तो फेज कितना बना लेगा, आदमी कोई फेज नहीं बनाता. वेव जैसे जैसे ट्रेवल करते जाते हैं तो उनके पाथ के बेसिस पे उनका हम फेज भी डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज वेव जब चल रही है तो वो साइकिल्स बनाते हुए जा रहे हैं. आदमी कोई रोड पे जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जाए, 20 किलोमीटर जाए, उससे उसका कुछ फेज नहीं बनने वाला है, बिकॉज वो तो जस्ट एक लेंथ कवर कर रहा है. लेकिन वेव्स के केस में क्या होता है, कुछ लेंथ को हम एंगल से रिलेट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड एंगल फॉर अ वेव. आदमी के लिए नहीं, कोई कार रोड पे जा रहे हैं तो उसका केवल लेंथ होता है, वो कितना लेंथ कवर कर रहा है, उसका कुछ फेज नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट. तो डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट, या यही रिलेशन याद रखो, बस ये सिंपल ही रहेगा याद करना. पाथ डिवाइड बाय टोटल पाथ, फेज डिवाइड बाय टोटल फेज फॉर 1 साइकिल. सो डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा phi इज व्हाट? फेज डिफरेंस. So delta x is path difference and delta phi is phase difference. And जो एंगल बनता है that is phase difference और जो लेंथ का डिफरेंस है that is path difference. अब दो वेव्स हैं, हमको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए, अब यहाँ पे मैंने बताया स्टार्टिंग लेक्चर में, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर कंस्ट्रक्टिव है, अब देख लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव के लिए हमको मालूम है एंगल कितना होता है 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई. यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाओ, तुमको इवन मल्टीपल मिलता जाएगा. 0 से पुट करते जाओ, 0 to 0 मिलेगा. 1 पुट करोगे तो 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, लाइक दैट. सो यू आर गोइंग टू गेट इवन मल्टीपल ऑफ पाई. यहाँ पे जो डेल्टा फाई है दैट इज ऑड पाई, 3 पाई, 5 पाई, हम इसको क्या लिखते हैं 2n plus 1 पाई. दिस इज व्हाट द फेज डिफरेंस फॉर constructive and phase difference for destructive. Now if you have to write path difference, तो जरा डेल्टा x की देख लो कहानी. जब 0 बनेगा तो डेल्टा x भी 0 बनेगा. जब एंगल 2 पाई होगा तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा, बिकॉज 2 पाई के करस्पॉन्डिंग कितना होता है लैम्डा.
नेक्स्ट 4 पाई बनेगा, 4 पाई के करस्पॉन्डिंग कितना बन जाएगा 2 लैम्डा, नेक्स्ट 3 पाई बनेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी 4 पाई के बाद 6 पाई, तो 6 पाई के लिए कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, नेक्स्ट इज 8 पाई, तो 4 लैम्डा लाइक दैट इज कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्लियर? जो हमारा एंगल था, एक काम करो मैं ऊपर लिखता हूं, इसमें थोड़ा ठीक से समझ ले कि मैं ऊपर अच्छे से लिखता हूं। यहां पे देखो मैंने प्रॉपर लिखा, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, मैं दोनों के लिए लिखने जा रहा हूं। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए देखो फेज डिफरेंस पहले मैं लिख रहा हूं, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज व्हाट 0 पाई, 0 इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 pi 10 pi like that, so what you can say 2n pi, this is what even multiple of pi। अब जरा हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, डेल्टा x, सो देखो 0 है, कोई लेंथ नहीं है तो ये भी 0 है, 2 pi, one cycle is completed, so when one cycle is completed, so what distance is covered, lambda, for 4 pi 2 cycles are completed, so 2 lambda, for 6 pi 3 lambda, for 8 pi 4 lambda 5 lambda like that, so this is what the path difference। अब देखो एंगल में केवल इवन मिल रहा था, यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इधर भी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, सारे नंबर्स मिल रहे हैं इवन एंड ऑड, सो हियर व्हाट यू हैव टू से जस्ट n लैम्डा, नॉट इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा। For angle it is even multiple of pi, but for wavelength या for path it is integral multiple of wavelength, complete integer होना चाहिए, integral multiple of lambda, complete अगर lambda complete integer है तो वो constructive difference देगा। अब destructive के लिए देख लो, for destructive phase difference, so what is the phase difference for destructive difference, that is pi 3 pi 5 pi 7 pi 9 pi 11 pi like that, this is what the angle। अब इसको अगर मैं बोलता हूं तो odd multiple of pi, so how to express an odd number, what you can write 2n plus 1 pi, this is what odd multiple of pi, this is odd multiple of pi। अब यहाँ पे देख लो n की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 1 2 3 4 रैंडम नंबर पुट करते जाओ, 0 पुट करोगे तो ये 0 कर देगा, बचेगा पाई, 1 पुट करोगे तो 2 plus 1 3 पाई, if you are putting 2 here तो 2 2s are 4 4 plus 1 5 पाई, if you are putting 3 here 3 2s are 6 plus 1 7, you will get 7 पाई। तो ये जो नंबर्स हैं ये सब मिलते जाएंगे, if n की जगह you are putting 0 1 2 3 4 like that। पाथ डिफरेंस पे आओ जरा, देखो 2 पाई के लिए लैम्डा था तो पाई के लिए कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2, because only half of the cycle is covered। For 3 pi it is 3 lambda by 2, for 5 pi 5 lambda by 2, हर जगह पाई की जगह lambda by 2 पुट कर दो, 7 lambda by 2 9 lambda by 2। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव एक कंप्लीट इंटीग्रल वेवलेंथ आता था, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कुछ भी कंप्लीट इंटीग्रल नंबर था। यहाँ पे क्या है लैम्डा बाय 2 फ्रैक्शनल आ रहा है, 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा, मतलब 0.5 में आ रहा है। तो अगर फ्रैक्शनल है तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ यहाँ व्हाट यू कैन राइट 2n plus 1 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे इंटीजर नहीं मिल रहा है, लैम्डा कंप्लीट मिल ही नहीं रहा है। जब लैम्डा कंप्लीट नहीं मिला है तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, और जब लैम्डा कंप्लीट मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव। तो फिर इंटीग्रल इफ पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल, पहली बात तो यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए, देख लो हर जगह ऑड नंबर है, कहीं पे इवन आया नहीं, बिकॉज जब इवन आएगा ना तो कट के इंटीजर आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे सारी जगह ऑड आ रहा है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ किसका लैम्डा का नहीं, लैम्डा बाय 2, बिकॉज ऑड इवन ऑड जब याद कर लेते हैं स्टूडेंट तो वही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए इवन याद कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड। एंगल में वो ठीक बैठता है, एंगल में इट इज फेज डिफरेंस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, हियर फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो इवन ऑड कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में फेज के लिए होता है, पाथ के लिए नहीं। पाथ के लिए हियर इट इज कंप्लीट इंटीग्रल वेवलेंथ एंड हियर फ्रैक्शनल। So 2n plus 1 lambda by 2, this is what odd multiple
odd multiple of lambda by 2. So for constructive interference, part difference is n lambda, and for destructive interference, part difference is odd multiple of lambda by 2. अब तुम लोग सोच रहे हो ये पूरा दुनिया भर का कहानी हम क्यों सीख रहे हैं? Because whenever you are going to decide whether waves are performing constructive interference and destructive interference, तो यही एक रास्ता है. On the basis of phase difference, either you can decide. If suppose phase difference is not given, वो कभी-कभी क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए phase ना देके path दे देता है. So on the basis of path difference also you can decide whether waves are performing constructive interference or destructive interference. तो ये आप लोग करते क्या, इसको नोट कैसे करोगे? बिकॉज मेरा बोर्ड तो भर गया, मुझे रब करना पड़ेगा. तो आप लोग नोट करते हो या क्या, कैसे करते हो? हेलो, कोई एक रिप्लाई दो भाई, सब लोग चुपचाप मत बैठे रहो. या हाँ, अच्छा ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं पहले बोर्ड का इधर पहले फर्स्ट हाफ का ले लो, फिर सेकंड हाफ का, फिर मैं इसको रब करूंगा. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट हाफ. अच्छा, बोर्ड का फोटो मैं भेज दूंगा. ठीक है, अच्छा इसका मैं फोटो लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके फोटो लेता हूँ, फिर मैं फिर से रब करके स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? सो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द फेज एंड व्हाट इज द पाथ, बिकॉज वेव्स की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो फेज और पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इन विच केस वेव्स आर गोइंग टू परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इन विच केस वेव्स आर परफॉर्मिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बिकॉज फेज मालूम होगा, पाथ मालूम होगा, देन ओनली यू कैन से कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा. So if suppose we have two waves, अपने पास दो waves हैं, first wave and second wave. First wave का जो amplitude है that is A1 and the amplitude of the second wave is A2. The amplitude of the second wave is A2. So amplitude of the first wave is A1 and amplitude of the second wave is A2. इनके बीच में जो phase है, phase difference phi का है. तो अगर हम wave equation लिखते हैं, if you are writing equation of first wave, y1. y1 is what? A1 sin omega t. Wave equation के लिए either you can use sin theta or cos theta because it must be a periodic function. Waves क्या करते हैं, अपने आप को बार-बार उसी में रिपीट करते जाते हैं. तो sin periodic होता है और cos भी periodic होता है, तो हम sin और cos दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो equation of the first wave is what? A1 sin omega t. Equation of the second wave is A2 sin omega t plus phi. क्यों मैंने प्लस फाई किया? पहला वाला ये ओमेगा टी मालूम चला है ना, मैं कैसे लिखा हूं, हम हमारा एंगल एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम.